6 trigonometry practice set 6.1 question number 1. If sine theta is equal to 7 upon 25, find the values of cos theta and tan theta. It is very simple question. It based on your previously 9th standard trigonometry, where we had studied the different formulas and different identities of the trigonometry. So here we are using one identity, sine square theta plus cos square theta is equals to 1. And based on that, because sine theta is given, we have to find this cos theta and tan theta. First of all, let me write what is given, and then which identities we are using, that I am going to write over here. Okay. Here sine theta is given 7 upon 25. We have to find the cos theta is equals to what, and we have to find the tan theta is equals to what. That too we have to find here. So we are having the one identity or one formula, sine square theta plus cos square theta is equals to 1. So here we have to find the cos theta. So I am changing this formula a little bit, modifying that one without changing the basic values. So cos square theta, we can write that cos square theta is equals to 1 minus sine square theta. Okay, so I am using this one. So here, so cos square theta is equals to, what is the value of sine? 1 minus sine value is 7 upon 25 square. So that is equals to 1 minus 7 square is the 7 7s are 49, and 25 ka square is there 625. You must have to learn the square a little bit up to the 30. Now take the LCM. 625 minus 49 upon 625. So that is equals to what it comes. It comes, do the subtraction, it is a 576 upon 625. When you get subtract, this gets subtracted, this becomes the value of cos square theta. ओके, सो अब यहाँ पे ध्यान रखना है ये किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर ही होता है और स्क्वायर वैल्यू ही आती है वहाँ पर, जनरली डिनोमिनेटर होता है उसके रिलेटेड ही उसके करीब करीब ही रहेगा यहाँ पर. देखिए 625 है, 576 है, मतलब कुछ तो नियर अबाउट होना चाहिए. तो आपको स्क्वायर रूट कैसे मालूम करना है वो भी बताया हुआ है वहाँ पे. यू हैव टू फाइंड दैट वन. हाउ टू फाइंड दैट? यू हैव टू मेक द फैक्टर्स ओवर हियर. सो हमको किसका मालूम करना है? वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द 576 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 576. हाउ टू फाइंड दैट? टेक द फैक्टर एंड मेक द पेयर्स. ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया. जनरली पेयर्स में ही आता है. यहाँ पर जितने जो पेयर में है वो वाले वन टाइम लेना है आपको. ये 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, और यहाँ से 3 आ गया. तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सॉरी 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. So 576 is the square root square of the 24. So here therefore cos theta is equals to 24. और ये तो पता है हमको 625 किसका आया था? 25 का. So 25. So value of the cos theta becomes the 24 upon 25. If you are having the cos theta, then we have to find we get the value of cos theta. Next क्या मालूम करना है हमको? tan theta. इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? tan theta is equals to साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सिंपल, ये यूज करना है, वैल्यूज रखना है, आ जाएगा. तो देयरफॉर यहाँ पे लिखिए फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है. तो हियर पुट अप द वैल्यू. साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 7 अपॉन 25. ये डिनोमिनेटर में होने से मल्टीप्लाई होकर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वैल्यू का, ये तो पता है हमको. कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन 24. सो देयरफॉर tan theta is equals to 7, 25 1 जा 25 1 जा, it is 7 upon 24, right? So this become the value of tan theta. Very simple. So इस सोल्यूशन का और एक अल्टरनेट मेथड भी है, आइदर ऑफ यू कैन यूज. हमने पहले आइडेंटिटी यूज किया, अब हम क्या करें? अल्टरनेट मेथड से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वी हैव ड्रॉ और राइट एंगल ट्राइंगल where the name of the triangle is PQR, and Q, at the Q it is the right angle and R is the theta. Okay, so we have to consider that this triangle PQR is right angle, where P, that we have to write here. In question it is given sin theta is equal to 7 upon 25, and we are considering this PQR is the right angle triangle, and where PQR is a 90 degree and angle PRQ is of theta. Okay, so क्या आएगा फिर? sin theta क्या था हमारा पास? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? यस,
अपोजिट साइड, याद करिए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, राइट, हाइपोटेनस। ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, TENUSE। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर अपोजिट साइड, देखिए इसको देखकर बोलिए मेरे को साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर फिर, अपोजिट साइड है PQ अपॉन हाइपोटेनस PR, राइट। But ratio is given there 7/25. What is the ratio is given? 7/25 है ना, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन PR इज इक्वल टू 7/25, राइट। अब यहाँ पे देखिए रेशियो के फॉर्म में जो डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिए हुए, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो हम क्या कंसिडर करेंगे फिर यहाँ पर, वी आर टू कंसिडर PQ इज इक्वल टू 7K। ये K क्यों ले रही हूँ कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है, 7/25 का रेशियो कुछ भी हो सकता है ना, अलग अलग डिफरेंट उसके रेशियो वाले वैल्यूज हो सकते हैं। इस वजह से क्या कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या, जिसका रेशियो 725 आ रहा है, ऐसे डिफरेंट नंबर्स का वहाँ पे रैशनल नंबर्स वहाँ पर हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, वी आर टेकिंग PQ इज इक्वल टू 7K। ओके मेथड था, देखो हमारा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने, वही कंसेप्ट है यहाँ पर। एंड PR इज इक्वल टू 25K, मीन्स PQ कितना आ रहा है यहाँ पर 7K और PR आ रहा है 25K। नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाँ क्या, कौन से इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम, यार अप्लाई ट्रायंगल PQR। PQR में अगर हम अप्लाई करें तो क्या आ जा रहा है यहाँ पर, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, राइट। PR की वैल्यू 25 स्क्वायर इज इक्वल टू QR मालूम करना है, राइट, प्लस PQ स्क्वायर क्या हमारा 7 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। देखिए सॉल्व करने के बाद QR स्क्वायर क्या मिल रहा है हमको, 576K स्क्वायर। हमने इसका पीछे निकाला था, यहाँ पे देखिए इसका LCM के जरिए हमने इसका निकाला था ये। तो हमको पता है कि 576 किसका स्क्वायर है यहाँ पर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, QR इज इक्वल टू, इट कम्स टू द 24K, राइट। ये आ गया है। उसी तरह से हमको निकालना है फिर आप cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू क्या है वहाँ पर, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या है हमारी, QR अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, PR है। तो QR क्या आ गया यहाँ पे देखिए 24K एंड PR इज द 25K। तो ये K कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, cos थीटा इज इक्वल टू 24/25 आ गई, जो पहले वैल्यू थी वही आ रही है। अब हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द tan थीटा। tan थीटा तो पता है हमको, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है यहाँ पर, PQ है, एडजेसेंट साइड क्या है, QR है। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7K और QR की वैल्यू क्या है हमारे पास 24K। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू K गेट कैंसल 7/24, राइट। हो गया, आइदर ऑफ द मेथड यू कैन फॉलो। ये दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इफ tan थीटा इज इक्वल 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। सिंपल है, हमको आइडेंटिटीज है, फर्स्ट हम आइडेंटिटीज यूज करके करेंगे। तो क्या है यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, राइट। 1 प्लस, हम इसको थोड़ा इस तरह से करके लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। हम यूज़ करेंगे, वैल्यूज पुटअप करना है और उसको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का 3/4 होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16, so that is equals to 16 plus 9/16 and that is equals to 25/16, राइट। ये आ रहा है आपका सेक स्क्वायर थीटा, राइट। सो देयरफॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करते हैं तो सेक थीटा क्या आएगा हमारा, इट कम्स टू द 5/4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। उसी तरह से सिमिलरली हमको मालूम करना है cos थीटा। cos थीटा क्या है हमारे पास, cos थीटा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिटी इनवर्स ऑफ द sec थीटा। तो 1/sec थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो cos थीटा इज इक्वल टू
1/5/4 है। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा फिर आपका, ये इन्वर्स हो जाके क्या आ जाएगी यहाँ पर, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। आगे दोनों भी वैल्यूज। सो दिस इज द फर्स्ट। इसका अल्टरनेट मेथड किस तरह से रहेगा, वी टू टेक और ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, वी कंसीडरिंग PQR एज राइट एंगल ट्राइंगल, tan theta value is given and where the angle PQR is 90 degree and PRQ is of theta. Okay, so if you are considering tan theta का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, अपोजिट साइड अपॉन adjacent side, right? So what is the opposite side to this theta? PQ. एडजेसेंट साइड क्या आ रही है, QR आ रही है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू 3/4 रहेगा, राइट? सो हम इस तरह से लिख सकते हैं फिर, tan थीटा सॉरी PQ इज इक्वल्स टू 3K एंड QR इज इक्वल्स टू 4K। बाई K मेथड हम कंसिडर कर रहे हैं कि तो रेशो के फॉर्म में दिया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है आपको। ओके, सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, जो तो राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं, इसकी एक वैल्यू, ये QR वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम फाइंड, QR वाली वैल्यू हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, PR नहीं है यहाँ पे, तो PR हम निकाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो रहा है यहाँ पर, PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। तो PR हमारा हाइपोटेनस है तो वो हमको तो मालूम करना है, यहाँ पर PQ की वैल्यू है 3K² प्लस इसकी वैल्यू है 4K²। तो क्या हो जाएगा 9K² प्लस 16K²। तो दोनों मिला के कितना हो रहा है 25K²। ये क्या आ गया हमारा, PR आ गया, PR² आ गया। सो देयरफॉर PR इज इक्वल टू क्या होगा, ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है, और K किसका, K² किसका है, K का। तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 5K हो जाएगा। 5K हो गया है। अब क्या कर, वी हैव टू फाइंड द सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, PR है, अपोजिट साइड क्या है वहाँ पर, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड आ रहा है, सेक थीटा आ रहा है ना यहाँ पर, यस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फिर, ये QR आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारे यहाँ पर, पुट अप द वैल्यूज, PR इज 5K अपॉन QR is 4K, 4K, K कैंसिल हो गया हमारा, सेक थीटा क्या आ रहा है हमारा 5/4, दैट इज। उसी तरह से कॉस थीटा निकालना है हमको। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या है हमारी, QR है, हाइपोटेनस है हमारा PR, एडजेसेंट साइड आ रही है 4K अपॉन हाइपोटेनस है 5K। ओके, सो इसको K get cancel, it comes here 4/5, right? So these are the, दिख रहा है आपको सिमिलर वैल्यूज आ रही है, sec theta, cos theta, cos theta. So this is the concept for the alternate method of for second question. Okay. Now the question number 3, if cot theta is equals to 40/9, find the values of cosec theta and sin theta. So we are having the formula for finding the cosec theta values, 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. So cosec, therefore क्या हो जाएगा यहाँ पर, cosec square theta is equals to 1 plus cot theta की वैल्यू दी हुई हमारे पास, what is there 40/9 square. तो क्या आ जाएगा 1 plus 40 का स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, it is of 1600. 1600 upon 9 9 is 81. So that is equals to 81 minus 1600 upon 81. So cosec square theta. Therefore cosec square theta is equals to, subtraction किया तो क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, it comes to 1681 upon 9 and 81. Okay. So therefore cosec थीटा, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट आएगा इसका 41/9। ओके, 81 का 9 और इसका 41। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉजिक थीटा। अब हमको निकाला है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, इट इज़ 1/कॉजिक थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉजिक थीटा। सो 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 41/9 है तो रेसिप्रोकल होकर क्या आ जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 9/41 हो गया, इसका रेसिप्रोकल आ रहा है, राइट, दैट वन। दीज आर द टू आंसर्स। अब इसका अल्टरनेट देखते हैं, यहाँ पर सेम है, पाइथागोरस लेना है हमको, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, उसमें राइट एंगल कंसिडर करना है और पाइथागोरस थ्योरम हमको अप्लाई करना है। सो अल्टरनेट मेथड, सो लेट मी ड्रॉ दैट ट्राइंगल।
सो आई हैड रिटन ऑल द बेसिक थिंग्स हियर. कॉट थीटा की वैल्यू दिए हुई है. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें कौन 9 पी क्यू आर 90 डिग्री है और पी आर थीटा डिग्री है बोल के मैंने लिख दिया. अब हम आपको लिखना है कॉट थीटा. कॉट थीटा क्या क्या होता है यहाँ पर? अपोजिट एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल थीटा क्या है यहाँ पर? क्यू आर बाय अपॉन अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा इट इज पी क्यू. क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्यू आर की वैल्यू क्या है देखिए, क्यू आर अपॉन पी क्यू बोल रहे हैं हम, तो क्यू आर अप. सो इसका रेशो क्या दिया हुआ है हमारे को? कॉट थीटा का रेशो क्या है? व्हाट इज गिवन? इट इज 40 अपॉन 9. सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्यू आर इज इक्वल्स टू 40 के और पी क्यू इज इक्वल्स टू 9 के, राइट. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो यहाँ पे ये लिया हमने, पुट अप द वैल्यूज. क्यू आर की वैल्यू हमारे पास पी क्यू की वैल्यू है, तो पी आर हमको मिल जाता है यहाँ पे. तो क्यू आर स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे? 40 के स्क्वायर. आर ये पी आर स्क्वायर की वैल्यू 1681 के स्क्वायर. सो देयरफॉर पी आर इज इक्वल्स टू, इट इज द स्क्वायर ऑफ 41. सो पी आर इज इक्वल्स टू 41. नाउ वी हैव टू फाइंड द विच वैल्यू? कॉजेक थीटा. क्या मालूम करना है हमको? देयरफॉर कॉजेक थीटा इज इक्वल्स टू, कॉजेक थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ओके, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड. तो क्या है ये? हाइपोटेनस पी आर है, अपोजिट साइड है पी क्यू. तो पी आर की वैल्यू है 41 और पी क्यू की वैल्यू आ रही है हमारे पास 9. इट इज़ 41 के एक्चुअली. तो 41 के 9 के इज इक्वल्स टू, ये के कैंसिल हो गया, 41 अपॉन 9, राइट. दिस इज द कॉजेक. सिमिलरली साइन थीटा निकालना है हमको. साइन थीटा क्या है? 1 अपॉन कॉजेक थीटा आता है यहाँ पर, राइट. साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉजेक थीटा, या फिर हम क्या बोलेंगे जिसको? साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉजेक थीटा मतलब 1 अपॉन 41 अपॉन 9 है, दैट इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 41. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, राइट. इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. वो रख के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं.